सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिओम तत्सत। प्यारे प्यारे भक्तजन, आप सबको कोटि कोटि हृदय से प्रेम भरा आशीर्वाद पहुंचे। प्रभु का कृपा बरसते रहे आप सब के ऊपर। Each one of you present here and each one of you online, heartfelt divine love, light, healing, bliss, prosperity. May all auspiciousness come into your lives and into the lives of your near and dear ones. May all obstacles be removed. Life is very challenging. It is very testing. Who tests us? Who evaluates us? Based on our thoughts, words, and deeds. Let us question that to ourselves. Let us find the answer today. There are many paths. The path you can take without much hindrance in your life and yet attain self-realization and be liberated within this very life. May we not complicate things, complicate life for our own selves. This is our prayer for today. For Lord, and let us all pray today and offer the punyas to all those who are very much in need. They have not created that calamity, they have not created themselves any obstacles, but it has come in their lives. May we pray we never get into that situation, for God is there to guide us and keep us at our safest place in life, so we do not get entangled into such situations. But those who are in those situations created by others who are selfish, who just want power, there are wars going on, but there are problems of natural disaster also. May Lord protect each one from all situations, all negative situations, so we can tread on the path of positivity through our own thoughts, words and deeds and our deep devotion. Shakti mile, bhakti bade,
और हम मुक्त हो जाए। गुरु की कृपा बरसते रहे आप सबके ऊपर। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। तं नमामि, सद्गुरु तं नमामि। Adorations to the divine preceptor, who is the bliss of Brahman, the giver of supreme joy, the embodiment of pure consciousness, beyond the pairs of opposites, vast like the ether, infinite, eternal, beyond all modifications. To that divine Guru we offer our adorations. Om Shri Gurave Namaha। अपने अपने गुरु के चरणों में कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए हमारे गुरुदेव पूज्य श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम। Our humble Sashtang pranams at the holy lotus feet of our Pujya Gurudev of Miami, Florida, Pujya Shri Swami Jyotirmayananda Ji Maharaj, Pujya Param Gurudev, Pujya Shri Swami Sivananda Ji Maharaj of Divine Life Society, Rishikesh, India, to our Jagat Guru, our world teacher, Bhagwan Adi Shankaracharya Ji, our humble Sashtang pranams and the entire saints and sages of the lineage and saints and sages of Sanatan Dharma in all religions, our humble koti koti pranam. Pranam to Brahman Devata, Acharya Ji, Shastri Ji, all who offer and guide through this spiritual life of every devotee. Our pranams. Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat. And today the activity from yoga quotations from the wisdom of our Pujya Gurudev, Pujya Shri Swami Jyotirmayananda Ji Maharaj, and his guidance today is the yoga of action or karma yoga. What is कर्म योग? आप सब जानते हो, all of you know what is कर्म योग. जब हम भगवान को जुड़ा देते हैं तब योग हो जाता, नहीं तो कर्म ही बन के रह जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव कैलकुलेशंस होता है. जब हम बोलते प्रभु आपके चरणों में हम अर्पण करके ये कार्य कर रहे, जैसे कि हम जब भी शुरू करते हैं सत्संग, whenever we start the satsanga we say we offer this at the lotus feet of our Gurudev and our Lord. It's not mine, everything is thine. Then it is karma योग. हर एक जो भी यहाँ देवी जी आती है, जूली जी आते हैं, सब जो भक्त जन आते हैं इतना अपना कर्म कर रहे हैं, पैसा नहीं चाहते हैं. जो पैसा चाहते हैं वो तो कर्म बन गया, राइट, लेना देना हो गया. और जो निस्वार्थ भाव से करते हैं, अपना घर में भी आप भोजन बनाते हो सबके लिए, when you cook food for everyone, offer it to God. I'm doing it for the God sitting in them. तब वो योग बन जाता है. तो हर एक कार्य में योग जुड़ाइए. तो स्वामी जी बताते हैं the yoga of action or karma yoga helps one to promote peace and happiness by bringing yoga into one's practical life. तो सब कुछ में प्रभु आपके चरणों में अर्पण. मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु सब तेरा. Nothing is in me, nothing is mine, everything is thine. I offer this at the lotus feet
of Pujya Gurudev and our God and Guru are one. Offer at thy lotus feet, O Lord. जय गुरुदेव. हरि ओम तत्सत. एक छोटा भजन भट्टी जी के मुखारविंद से. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हमारा दंडवत प्रणाम है उस ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति को, हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज को, सब साधुओं को, शास्त्रों को, ऋषियों मुनियों को, हमारे पवित्र ग्रंथों को और आप सब में विद्यमान परमेश्वर को। Our humble prostrations to the all-pervading Brahman, to our worshipful Guruji,
Swami Jyotirmayanand Ji Maharaj, to all the sages and saints, all the scriptures, all the pilgrimage centers, and to the divinity in each and every one of you, whether here physically in the temple or listening online. Divine blessings as we continue this Bhagavad Gita Yajna every week. Next Sunday we will not be here as it is Diwali and it is being celebrated in the temple. So we will conduct Bhagavad Gita. Class will still be there, but it will be from our kutir, from our satsang kutir. Hari Om Tat Sat. So let us continue our journey. भगवद गीता की जो ये यज्ञ चल रहा है, राज विद्या राज गुह्य योग, meaning the secret knowledge of Bhagavad Gita which Lord Krishna is giving to his favorite disciple Arjuna. तो अर्जुना को ये ज्ञान भगवान देते हैं. Today we are on shloka number 22. It is considered one of all the shlokas in Bhagavad Gita are deeply profound. सब श्लोक बहुत ही गहरा है, सागर के समान गहरे हैं, लेकिन इस श्लोक का जो भावार्थ है हमें बहुत प्रिय लगता है. So I feel very attached to this shloka, although every shloka is so profound. Bhagavad Gita. तो ये श्लोक में भगवान बोलते हैं अर्जुन को, अनन्याश्च चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. मेरे भी फेवरेट है. इतना ही बस बोलने में ऐसा अंदर से भाव उत्पन्न हो जाता है, that divine feelings erupt right there. As soon as the thought of this shloka comes, yogakshemam vahamyaham ananya chintan. That's what keeps ringing in my, based on my health and everything. Lord, this means, Lord, only you are in charge. Only you are. This is the devotion we all should have. If I'm thinking of you day and night, you are in control of everything. Not only health, financial, spiritual, every aspect of life. Nothing is mine. So जो अनन्य प्रेमी भक्त जन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हैं. Remember this word. प्रभु ध्यान रखते हैं, लेकिन निरंतर चिंतन, ये असली शब्द है. आधा knowledge is dangerous. बोलो भगवान किया नहीं, लेकिन नहीं, आपने अनन्य चिंतन नहीं किया तो कुछ अधूरा रह गया. तो चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं. सो अनन्य चिंतन एंड निष्काम, सेल्फलेस. तो वो सब कुछ का ध्यान रखेंगे. तो मेरा निष्काम भाव से भजते हैं उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग क्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूं. सब कुछ प्रभु हम सबको इतना ध्यान रखते हैं, प्रेम करते हैं, अगर हम भी प्रेम करें उनसे. But those who worship me alone, thinking of nothing else, who are ceaselessly devoted to me, I look after their yoga. I supply that which is not already possessed. This is so beautiful, understand this. I supply and protect that which is not, or I supply whatever which is not already possessed by them, and kshemam, that is yoga. And kshem, what is kshem? I preserve that which they already possess. जो है उसको बचाते हैं और जो नहीं है उसको देते हैं.
Thank you So beautifully explained also by Lord Krishna here. What more do we want? अब हमें और क्या चाहिए जब भगवान स्पष्ट रूप से आपको बता रहे हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, अर्थात तुम्हारा भार मैं उठाऊंगा। भगवान बताते हैं कि तुम्हारा भार मेरे कंधों पर है। और वैसे भी अगर आप सोचेंगे हम क्या कर सकते हैं, कितना सांस हमारे पास है हम इतना भी नहीं जानते। We don't even know how when our last breath will arrive, what we have. We can do nothing without God. But yet that compassionate, loving, kind, graceful and compassionate God is saying, Ananyash, those devotees who come to me with a pure heart, sincere heart, मतलब श्रद्धा युक्त और बिना किसी चालाकी के, बिना कुछ मांगे हुए कि भगवान ये होगा तो ये करेंगे, ये होगा तो वो करेंगे, ऐसा नहीं है। वो सकाम्य पूजा एक अलग विधि है, दैट इज अ डिफरेंट प्रोसेस। बट हियर गॉड इज सेइंग टू थिंग्स। वन इज सेल्फलेस, मतलब कि तुम केवल इस बात का धन्यवाद देते हो कि भगवान आपने हमको इस धरती पर लाए हो और हमें शक्ति दे रहे हो, इस बात का हम धन्यवाद। वी आर प्रेइंग टू यू, वी आर अटैच्ड टू यू एंड वी डेडिकेट आवर लाइव्स टू यू। जब हम ऐसे बोलते हैं तो उसमें अनन्य भाव आ जाता है। अनन्य भाव, इट इज नॉट इजी। दीज थिंग्स, स्पिरिचुअलिटी कैन बी वेरी सिंपल और वेरी कॉम्प्लिकेटेड, डिपेंड्स ऑन हाउ फ्रॉम विच एंगल यू आर लुकिंग एट। तो इसीलिए जब हम नम्र होकर, सरल होकर, बच्चों की तरह, जैसे 2-3 साल के बच्चे होते हैं, बिल्कुल प्योर, दे डोंट हैव एनी एंगर, 1 मिनट में लड़ते हैं, दूसरे मिनट में उसी के साथ हक करके खेलने लग जाते हैं। हम लोग इतना भारी भारी मन मुटाव कर लेते हैं, दुश्मनियां कर लेते हैं, तोड़ देते हैं, कई जन्मों के रिश्ते, भाई भाई से जुदा हो जाता है, बहन बहन से। सो वी हैव ऑल दिस। व्हाई डू वी डू इट? बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब हमारे को अविद्या का नशा चढ़ गया है। अविद्या, हम सोचते हैं ये मुझे मिल जाए। संपत्ति के पीछे कितना झगड़ा होता है। When the parents die, how many people fight for property only? This is mine, this is mine, this is, and then all life it continues. तो ये छोटी बातें नहीं है। और इसको समझने वाला जो होगा वो उस बात को समझेगा कि भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं, मेरा ध्यान वो कर रहे हैं। तो यू हैव टू डेडिकेट 100%। अगर थोड़ा भी कम होगा तो वो भगवान की दृष्टि में पूर्ण नहीं है। पूर्ण समर्पण मीन्स फुल सरेंडर, 100%, जिसको बोलते हैं अनकंडीशनल सरेंडर। अनकंडीशनल मतलब कि भगवान हमारी कोई कंडीशंस नहीं है। शुरू में अर्जुन बोल रहा था, क्या बोलता था? फर्स्ट चैप्टर में विषाद योग, he was doing विषादा, anger, he was crying, Lord don't ask me to fight, बाकी सब कुछ कर लूंगा लेकिन लड़ने को नहीं कहना, मैं बैठ गया। तो it is not unconditional, isn't it? You are conditioning it by saying I will not fight, everything else I will do. तो भगवान बोले शांत होके उठो, युद्ध करो। वो नहीं समझे, धीरे 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 he had to explain it in 700 shlokas for our benefit, for our, you and our benefit. Lord Krishna did this. Here God is saying, I will promise you, if you give yourself to me, then your survival depends on me. It's my responsibility. जैसे ट्रेन जब चलती है उसमें हम अपना लगेज सिर पे थोड़ी उठाए रखते हैं। कुली उठा के लेके आता है, वो सिर पे उठा के लाता है, right? He needs, you carry the luggage till you put it inside the train. Once it's inside the train, you don't need to put it on your head anymore. It will carry you. It is already carrying you. It is carrying so many other things. तो भगवान की शक्ति पे अपने आप को समर्पित कर दो। Dedicated, leave your luggage. Luggage, what luggage? Not physical. Your worries, tensions, अपना भार जो जो अपने सिर पे लाद के रखे उतारते ही नहीं है। सिर्फ जब नींद आता है थोड़ी देर के लिए चला जाता है। When we fall asleep, we feel happy. We wake up, we are again unhappy. Back to the same old lawsuits and this and that and anger and hatred. ये छोटी बातें नहीं हैं. These are life transforming things. This is why there is no scripture like Bhagavad Gita. Bhagavad Gita guides you how to live your life and how to
enjoy and terminate the cycle of birth and death. जन्म मृत्यु के चक्र को कैसे काटा जाता है भगवत गीता स्पष्ट रूप से सिखाती है। अब यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि अगर तुमने अपने आप को मुझको दे दिया तो मैं तुम्हारा योग और क्षेम कौन वहन करेगा? मैं करूंगा। आई विल डू इट। योग मीन्स टू कनेक्ट विद गॉड। आई विल इंक्रीज योर डिवोशन टू मी। But that doesn't mean that you don't do it. He says you have to do 100%. सेल्फ एफर्ट नहीं छूटेगा। मतलब दैट डजंट मीन कि हमेशा हम भगवान के आगे माला पकड़ के बैठे रहें 24 घंटे, ये नहीं है। मतलब ये है कि आप जो भी करो, वर्क इज वर्शिप। व्हेन यू आर वर्किंग, व्हेन यू आर डूइंग योर थिंग्स, व्हेन यू आर बाइंग थिंग्स, बी प्योर, बी कंसिस्टेंट एंड बी डिवोटेड टू गॉड। भगवान ये इतना बोलते हैं सिर्फ कि अपने हृदय में मेरे को धारण करके रखो। जैसे आपका सांस चल रहा है, आप ध्यान भी नहीं देते तो सांस चलता रहता है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर ऑक्सीजन कम होता है तो हमारा सब हिल जाता है। वी नीड ब्रेथ। सो दैट इज व्हाट गॉड इज ट्राइंग टू से हियर, दैट वंस यू गिव योरसेल्फ टू मी फुली, देन आई विल गिव माई सेल्फ। दिस इज माई गारंटी टू यू। What more do you want? I will tell you. आपको अब हम थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं, क्योंकि ये तो सब थ्योरेटिकल बातें हैं। I have met saints and sages in India. Last year जब हम गए थे तो हम उत्तर काशी में गए थे। उत्तर काशी is high in the Himalayas. ऋषिकेश से about 6 miles, गंगोत्री से थोड़ा नीचे आता है। And I have personally met sages and saints who have this पूरा धार लिया उन्होंने। they have it inside of them, in their DNA, in their bloodstream this resides. Because you give them something, they will not take it. नहीं, बस ठीक है, अभी हमारा खाना हो गया, पेट भरा है, हम खुश हैं। तो मैंने कहा महाराज थोड़ा कुछ ले लीजिए। क्या? अरे भगवान है ना, ध्यान करेंगे। और भगवान ध्यान करते हैं, होता है। कहीं से भी कैसे भी कोई ना कोई आएगा। फ्रॉम समवेयर somebody will come and he will deliver to them. Today also there are those people, whether you believe it or not. I have met them personally. हम लोग इतना सब मिलियन हो जाता है बैंक अकाउंट्स में, तब भी बोलते हैं अरे अच्छा अभी रिटायर नहीं हो सकते, अभी इतना और चाहिए, 5 मिलियन और कर लें, ये कर लें, वो कर लें। कोई अंत नहीं है। There is no end to these things. Not that money is good or bad, money is money only. But if it's sitting in your lockers and just eating dust, what good is it? When you take it, you use it. भगवान बोलते हैं इसका अपने आप को मुझको दे दो, क्योंकि उसमें क्या होता है रजस में, not that things are bad, it's our mentality that is bad. Otherwise you can be a king. आप राजा बनकर भी धर्म परायण हो सकते हैं। राजा राम, राजा जनक, है ना, ये सब राजा थे। They were kings, but they were always full of devotion. उनके पिताजी ने बोला जाओ अगले दिन राज मिलेगा, you will be coronated king. And then he said, no, sorry, my wife doesn't want you to be the king. She wants you to go to the jungle for woods for 14 years and she wants her own son to be the king. Bharat, यही तो दीपावली है। अगले जो आएगा ये सब हम सेलिब्रेट करेंगे, the big festival of Deepavali. Lord Rama is coming back after 14 years, isn't it? तो ये जो सब चीजें हैं, ये these are not theoretical, practical. But does that mean that everything will be totally glorious? Everything will be always nice? No. कष्ट तो शरीर है, देह धरे का दंड है, हर काहू को होए. This body itself is a transient thing. Today we are here, tomorrow we are gone, isn't it? For everybody, doesn't matter. कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज हो जिसमें भी सांस है, आज है तो कल नहीं रहेगी, ये हम जानते हैं। लेकिन हम उसको डस्ट, जैसे हम कारपेट के नीचे डस्ट डाल देते हैं, बाद में क्लीन करेंगे, वही सब हम करते हैं। As soon as we think of these things, we don't want to acknowledge. But when you come in satsang, these things come out in the open and we are purified. That's why we say satsangatve nihisangatvam, nihisangatve nirmohatvam, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। अगर आप सत्संग, एक अच्छे गुरु के सत्संग में बैठ गए तो कल्याण होगा ही। You will be purified, good things will happen because you will learn the mysticism, the secrets of purity. तो यहाँ पर एक और भी बड़ी सुंदर सी, there's a nice story that comes
तो पहले हिंदी में बता के फिर इंग्लिश में करेंगे, बिकॉज आई वॉन्ट एवरीबडी टू फुली एंजॉय दिस स्टोरी। तो इस श्लोक का ऊपर है, देयर वाज अ ब्राह्मण in ancient India, a Brahman and his wife. They were very spiritual people, both of them spiritual. तो वो बहुत धार्मिक लोग थे, ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत ध्यान करते थे, लेकिन गरीब थे। उस समय धन इतना नहीं होता था। they were living in a village, so they were poor people. So then what happens is कि एक दिन उनको भोजन नहीं मिला, 2 दिन भोजन नहीं मिला, थोड़ा अकाल पड़ गया, there was some problem, और भिक्षा मांगते थे, they didn't get enough food for 2 or 3 days. तो third day they were obviously बहुत भूख लग रहा था, बहुत कष्ट भी था, and they were devotees of God also. So then the Brahman himself read this shloka. He read this and he took a red pen and he struck it off. योगक्षेमम वहाम्यहम उसने लाइन से काट दिया। उसने भगवान गलत है कहा, अगर आप होते हम 3 दिन थोड़ी भूखे बैठते। We would not have been hungry for 3 continuous days, no water, no this, no that. God, this is wrong. Whoever wrote this in Bhagavad Gita is wrong. I'm gonna strike it off. उसने लाल पेन लिया और उसको काट दिया। कौन सा? योगक्षेमम वहाम्यहम। He cut off those 2 lines and he scratched it with a red pen. Okay. Now he says, oh, I'm gonna go get some food. I'll try to see, बेचारा रोता हुआ अपनी वाइफ को बोला, let me go see if I can get something. He went, and then the wife is doing whatever she's doing. She's also hungry. इतने में एक बुलक कार्ट आता है, फुल बुलक कार्ट फुल ऑफ ग्रेन्स। उसके अंदर चावल, आटा, दाल, एवरीथिंग इज देयर, लॉट्स, नॉट ओनली फॉर 1 day बट परहैप्स फॉर मे बी 1 or 2 years। इतना भोजन भेज दिया। अच्छा, वो बोलती है आपके लिए, वो लड़का बोलता है आपके लिए आया है। तो वो बोली, भैया आपको गलती लगा है, यहाँ पर हमारे तो कहां से आ गया? कहते नहीं, द बॉय सेड समबडी आया है और उसको एक पत्र दिया। ही गेव अ लेटर टू दैट लेडी एंड शी सेज, कुछ बोलो। ही सेज, क्या बोलूं? उसके जबान से थोड़ा खून निकलता है, ऐसे बोल के कि भाई ने आई कैन नॉट से, वो करके वो निकल गया। तो she sees this whole cart and she is thanking God. भगवान आपका क्या मेरा हस्बैंड किया है, क्या आज गया है और कैसा काम हो गया, इतना सब कुछ आ गया। तो द हस्बैंड कम्स बैक इन अ लिटिल वाइल। कुछ नहीं मिला, उस दिन भी कुछ नहीं मिला, 3 दिन से भूखे, चौथे दिन भी सब जगह कष्ट था, तो didn't have anything. So then when he comes, the wife is very happy. She has already cooked the food and she comes running. उसके पास भाग के आती है, उसको बोलती है, क्या आपने कमाल कर दिया, इतना भोजन कहाँ से आ गया, अब हमारे कष्ट दूर हो गए, we are now taken care of for such a long time. What happened? And then he says, I don't know. वो तो बेचारा हक्का बक्का है, सोच रहा है ये क्या हो गया, what is this, what is she talking about? Then he comes in and he sees all these grains and dals and flour and everything full, पूरा किचन भर गया। तो बोलते हैं ये she says, oh yeah, he had given you, or somebody gave you a letter. तो वो बोलते थे कि आपको देना, तो आप पढ़ लेना। तो कहता उसने कुछ बोला नहीं, didn't he say something? कहती नहीं, कुछ नहीं बोला, उसकी जबान से बस खून निकल रहा था। He was bleeding a little, but he gave this letter and then he left. He was in a hurry. तो when he opened the letter and he read it, उस पे लिखा था कि तुम मेरे बड़े प्रिय भक्त हो, I love you a lot, you are a very sincere devotee, and also I have so many other devotees like you who are equally sincere. वो भी हैं सब जो अलग अलग कष्ट से गुजर रहे हैं। He says, I'm sorry कि मेरे को आपके पास आने में थोड़ा देर हो गया, but better late than never. I'm here and this is your food that I have brought. But why did you punish me like that? Why did you cut my tongue? मेरा जीभ क्यों काटा? मतलब क्योंकि उसने ये योगक्षेमम वहाम्यहम जो बोलते थे वो काटा था। तो उसके बाद वो इतना उसको ग्लानि हुआ, he felt so bad because he was such a good devotee and he got shook up. मतलब कि कष्ट जब भी किसी की जिंदगी में आता है, अच्छे अच्छे भक्त भी हिल जाते हैं। आपको ये बताने के लिए हम समझा रहे हैं। उसके बाद he never ever wavered, all the time he was crying, and बस भगवान के दर्शन हो गए।
भगवान के किसी भी रूप में। डोंट एक्सपेक्ट गॉड टू कम लाइक कृष्णा, मुरली पकड़ के नहीं आएंगे, किसी इंसान के रूप में ही आएंगे, कभी बंदर के रूप में आ जाएंगे, कभी किसी और अच्छे इंसान, कोई आपका काम बना के चला जाएगा। थिंक गॉड हैज टच्ड यू, that is when God comes and touches you. So this is what he means by ananyascha chintayanto mam ye jana. So when God makes a promise, he does it. There was another saint, Swami Tapobanji Maharaj. I don't know how many of you know, but many of you know may know Swami Chinmayananda. Do you know anybody? उनका वो बच्चों का मिशन भी रहता है. He is very famous in America, Swami Chinmayananda. So his Guruji was Swami Tapovan Maharaj. His Guruji was very not known, not very well known. Just like Vivekananda ji's Guru, Vivekananda became famous in America only. Back in India, it was Ramakrishna, nobody knew. Because of the disciple, the Guru also became later very famous. ऐसे ही तपोवन जी महाराज के शिष्य थे ये चिन्मयानंद जी महाराज. तो तपोवन जी खुद हिमालय में घूमते थे. Everywhere, only in a kurta, long kurta. And where tigers used to be. ये कोई दंत कथाएं नहीं है. I'm not telling you stories that are from long times ago. Just 2 generations ago, maybe in 1960s, 1950s. So तपोवन जी महाराज बड़े बड़े जंगलों में भी घूमते थे. कुछ नहीं रखते थे साथ में, कुछ रखते ही नहीं थे, खाने बहने का कुछ नहीं. बोलते थे अरे महाराज आप ये जंगलों में घूम रहे हो, कभी शेर आ जाता है तो कभी चीता, तो कभी भालू, तो कभी कोई. No problem. They, all of the nature bowed down to him. They bowed down. Uttarkashi में उनका भी आश्रम है. I was there last year. So what I am trying to tell you is that he would be everywhere and योगक्षेमम वहाम्यहम. भगवान की जिम्मेदारी बनती है. भगवान से उनको, भगवान से डरते हैं ऐसे भक्तों से. भगवान उनका काम कभी भी अधूरा नहीं छोड़ते. तो कहते हैं इनवेरिएबली आउट ऑफ द जंगल somebody would come with some food from somewhere, some villager, somebody from some place, from some. एक बारी वहां पर कुछ डिकॉइट्स थे. डिकॉइट्स मतलब जंगल, घना जंगल था, deep forest, and so lot of bandits and bad people were there who would like rob you and all that. तो जब वो जाने लगे यहाँ से तपोवन जी महाराज, तो उन्होंने पकड़ लिया. उन्होंने बोला कहाँ जा रहे हो तुम? ये तो साधु सन्यासी, कुछ भी जेब में नहीं है. He is just walking around. He says I just going. He says do you know how far the next village is? बोले नहीं, मुझे नहीं पता. कहते हैं 25 किलोमीटर दूर है, अभी आपको चलना पड़ेगा. कहते तो कोई बात नहीं, चले जाएंगे. कहते तो खाना कहाँ है तुम्हारा, जेब कहाँ है, क्या सब पैसा नहीं, कैसा? He says no, nothing is needed. He says why don't you need? He says because you are here. आप हो तो सही, आप मेरा ध्यान रखोगे ही. तो कहते हैं इतना उसका जो वहां का सरदार था, he felt so sad and so moved by this that immediately they cooked for him, they fed him food, and वहां पर सत्संग होना शुरू हो गया, जैसे अभी हम आप लोगों के साथ कर रहे हैं. That's what happened. So satsanga started and he started guiding them, and then he told them about the story of Valmiki, how Valmiki was like them. He says, you know, there was another buddy, somebody like equally bad, just like you. He turned into a big saint. How? What happened? And they all converted, believe it or not. तो ऐसे इन विभूतियों का फर्क पड़ता है. When you come in contact with these pure sages and saints who don't, what can you give them? You can only learn from them. You can only give them tears of gratitude. बस उससे ज्यादा आप कुछ नहीं दे सकते. ये धन मन छोटा मोटा चीज, ये क्या है? संसार की वस्तु है. आपका अपना शरीर ही मिट्टी हो जाता है. Your own body becomes what? Dust only. Earth to earth, water to water, air to air. खत्म. तो इसके बाद जब ये भगवान, इसका मतलब इस श्लोक को गूढ़ तरीके से समझिए, डीपली यू अंडरस्टैंड. अब हमारे में समस्या क्या है? वी डोंट हैव 100% फेथ. वी हैव सम फेथ. वी हैव हाँ अच्छा भगवान है, ठीक है, हम चले जाते हैं. कई लोग ये भी सोचते हैं कि भगवान के पास मंदिर में दर्शन कर आए, अब संसार अलग है, भगवान अलग है. ऐसा नहीं है. भगवान हर जगह है. वो डिपार्टमेंट वहां झूठ बोल दिया तो समझो मंदिर में भी झूठ बोल दिया, क्योंकि भगवान का अस्तित्व घट घट में है साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे. एवरीवेयर गॉड रिजाइड्स. वेयर इज ही नॉट? वेयर इज गॉड नॉट? ही इज इन एवरी एटम, है ना. क्वांटम फिजिक्स भी आपको यही सिखाता है, जो कुछ आप देख रहे हो ये वास्तविक नहीं है.
भगवान भी यही बताते हैं। तो वो कह रहे हैं कि तुम जब मेरे पास आओगे तो द्वैत खत्म हो जाता है, duality ends, that's all God is trying to say. There is no longer any duality and therefore I will take care of you. अब आप बताओ, जब आप पैदा हुए थे, you were born, did you worry how will I be fed, who will take care of me, who will be my mother, my father? You just dropped. Isn't it? जहां पर भी पैदा हुए, आप गर्भ से बाहर निकले, मुट्ठी बंद था और रो रहे थे, कपड़े पे, तन पे एक भी कपड़ा नहीं था, nothing you had. So then what happened? As soon as you saw your mother, the first time you looked at her eyes, she looked at you, that was enough, isn't it? उससे बड़ा स्पिरिचुअल मोमेंट और कौन सा चाहिए, उससे बड़ा कौन सा मंदिर है? भगवान का वास उसके अंदर भी और उसके अंदर भी। तो दोनों से बच्चा आके बाहर थोड़ी पूछता है, शो मी योर आईडी, डू यू हैव अ पासपोर्ट, हु आर यू, आर यू रियली माय मदर, हाउ डू आई नो, शो मी योर डीएनए। यहाँ पर तो आजकल वो क्या जीनियोलॉजी, कौन सा वो कंपनी है आपका एंसेस्टर्स का बताते रहे। सो यू सी दैट लेवल। सो हियर गॉड इज सेइंग, you did it, you only did it when you were born, didn't you? आपके पास पूरा श्रद्धा था, किसने योगक्षेम किया? आपके माता पिता ने, isn't it? आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, खाना खिलाया, आपके डायपर्स बदले। इंडिया में तो होते भी नहीं थे उस समय, अब तो हैं, सब कुछ है। तो कितना कुछ पेरेंट्स सहते हैं फॉर द किड्स, ऐसे ही भगवान सहते हैं आपके लिए। आप समझो इस बात को, ये छोटा बात नहीं है। Nobody will explain this. God is going through more pain than you are going through. जब आपको दर्द होता है तो आपकी माता पिता को आपसे ज्यादा दर्द होता है। They feel more. आजकल भी ये चलता है, मेरे बेटे की शादी नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। वो बच्चा खुश है लेकिन माता पिता को परेशानी है। They're feeling, he says, no mom, I'm fine. तो ये जो है लाइफ लॉन्ग ये बातें रहती हैं। जो केयर है, जो लव है, दैट इज नॉट इजीली रिलेटेबल, यू कैन नॉट पुट एनी लैंग्वेज ऑन इट। एक आंसू की कीमत कई ग्रंथों से अधिक है, मच मोर देन मेनी स्क्रिप्चर्स, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम द हार्ट, हृदय से निकलता है। तो जो हृदय से निकलता है, भगवान बोलते हैं वही मैं हूं, वही उसका ध्यान करो। तो पूर्ण निष्ठा के साथ अपने आप का मन भगवान उन्मुख कर लेते हैं। Those kind of people who have so much faith, so pray to God to give you that much faith कि अब हमें किसी भी चीज का वो नहीं रहे कि हम अपने आप को, आप एक इंस्ट्रूमेंट बना लो। भगवान कृष्ण की बांसुरी, जस्ट लाइक अ फ्लूट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। Then when he plays you, that melody will be more beautiful, more melodious than anything else. जो आप करोगे उससे कहीं अधिक जो है प्रभु आपके लिए करेंगे। तो केवल भगवान के ही वे चिंतन को विषय बनाते हैं। So these people who are fully dedicated to God, they consider God in everything. अपने बच्चों में, अपनी बीवी में, अपने घर में, अपने बॉस में, इधर उधर सब जगह वो नाटक करते हैं बस। They are acting just like the actors act. They are not them, isn't it? They are just doing a role. फिर घर आकर वो थोड़ी होते हैं। ऐसे ही जो मुक्त आत्माएं हैं वो संसार में व्यवहार करते हैं। They have to get angry, they have to do things, they have to do, otherwise the world will not function. But inwardly they are simply doing it as an instrument of God. केवल भगवान के लिए कर रहे हैं। घर आकर अंदर से मन उनका भगवान से जुड़ा है। मतलब भगवान से अधिक प्रियतम इस संपूर्ण विश्व में उनके लिए और कोई नहीं होता। मीनिंग आउटसाइड ऑफ गॉड there is nobody else. Ultimately there is nobody else but God. But we all have to graduate. जैसे अभी हम किंडरगार्टन में हैं, फिर सेकंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में, फिर करते करते डॉक्टर बन जाते हैं, isn't it? लेकिन कभी तो आप किंडरगार्टन में थे ना, कभी तो आपने A for apple, B for boy सीखा था। तो अब वही स्थिति स्पिरिचुअलिटी में ले आइए। We are all in different levels. Somebody is learning, somebody is in middle school, somebody is in high school, etc. etc. तो अंत में यही है कि इसके लिए एकेडमिक नॉलेज की आवश्यकता नहीं है।
ये हम भगवान क्लियरली बताते हैं, आई डोंट केयर कि हाउ मेनी credentials you have earned in the world. I want to see how dedicated you are. तुम्हारी भक्ति कितनी है, तुम्हारे अंदर शक्ति कितनी है, ये सब। तो वो भगवान के लिए जो जीते हैं वही हैं। तो साधु संत, ऋषि मुनि, जो भी renunciates हैं, वो भगवान के लिए ही जीते हैं, अर्थात they do ज्ञान यज्ञ. So this is also living for God and then taking the message of God to other people and sprinkle it around. तो वो तो अभी भी इंडिया में कई जगह सन्यासी घूमते हैं, उनको परिव्राजक कहते हैं. परिव्राजक मीन्स दैट दे रोम अराउंड, डंडी स्वामी, डंडी लेके सब जगह जाते हैं. अभी टाइम चेंज हो गया है, तो चतुर्मास फिर भी आता है, 4 months, देन दे स्टे एट वन प्लेस. जब बारिश आता है, रेन्स, दे स्टे एट वन प्लेस, देन दे पिक अप अ स्क्रिप्चर एंड डू इट. बट ताकि कीड़े मकोड़े नहीं मरे, खूब बारिश आता है, so and it's very difficult to travel. Other than that, they are always going from one village to the other, to the other, to the other. ऐसे ही देखो ये सिख धर्म में भी गुरु नानक जी ये सब ये करते रहे थे. All their lives they were traveling everywhere, giving this knowledge to so many people, ताकि एक कैंडल से कई कैंडल्स जल सकता है, एक जलती हुई मोमबत्ती से so many other. अभी दिवाली आता है, एक दिए से फिर दिया जलता है. That is what we do. So God is saying कि भगवान का चिंतन करते रहो, भगवान के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है. समस्त जीवों में वे भगवत दर्शन करते हैं और उन्हें प्रेम करते हैं. मतलब डिवोटीज ऑफ गॉड सी गॉड एवरीवेयर. एवरीवेयर मतलब सब जगह भगवान ही दिखते हैं. तो कोई चमत्कार का वेट नहीं करो, ये नहीं वेट करो कि मैं उड़ के दिखाओ, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, then you know, otherwise you don't know. All that is foolishness. That is not spirituality. हाँ, अगर पंछी उड़ता है तो कोई नहीं उसको देख के बोलता अरे कितना बड़ा चमत्कार है. वही इंसान कर ले तो अरे बाप रे, सारे पूरा सब चैनल वहीं आकर उसी का पूछेंगे. क्यों? Why? Because उसके पास क्षमता नहीं है, पैदाइशी उसके पास क्षमता है, isn't it? तो अब ये छोटी छोटी सिद्धियों के लिए जो ऋषि मुनि हैं, बड़े जो ऑनेस्ट सेजेस एंड सेंट्स हैं, वो कहते हैं इनमें फंसो नहीं. बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इसमें फंस के तपस्या भंग कर लेते हैं. एंड यू विल बी टेस्टेड as you promote yourself, as you go deeper and deeper to God, closer and closer to God, तो आपके पास परीक्षा आएगी. जहां पर भी विश्वामित्र है, मेनका आएगी. अब आप संभालो, उसको संभालो, कितनी देर तक संभालते हो. और उसके पीछे भी विधि का विधान है. अगर परीक्षा नहीं आ रही है, सपोज टेस्ट्स आर नॉट कमिंग, देन यू शुड से गॉड व्हाट्स रॉन्ग. समथिंग इज रॉन्ग, बिकॉज इफ आई एम डूइंग इट प्रॉपरली, दीज रूल्स आर. कुंती तो यही बोलती थी भगवान को कि भगवान मुझे कष्ट दिया करो, बिकॉज आई वॉन्ट दिस टू बी ओवर विद. ये शरीर जो है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम. व्हाई? शी सेज आई डोंट वांट टू कम बैक. उनके नेफ्यू भी थे भगवान कृष्ण, कुंती माता के. कुंती माता पांडवों की माता जी थी, तो शी वॉज रिलेटेड, उनकी बुआ लगती थी भगवान कृष्ण की. तो ऑल्दो शी न्यू ही इज माय नेफ्यू, बट शी ऑल्सो न्यू ही इज गॉड. तो इसीलिए वो बोलती थी भगवान आप जो है हम पर, एवरी टाइम यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स. शी डिडंट आस्क फॉर एनी लग्जरीज, शी डिडंट आस्क फॉर, वनवास करना पड़ा, ये करना पड़ा, सब कुछ करे माता करी. तो उसके बाद बोलती थी कि आई डोंट वांट दिस टू बी परपेचुएटिंग. व्हाई? बिकॉज बर्थ वेरी पेनफुल, death very painful, old age very painful, disease very painful, other people's death very painful. तो कहां पर आपको सुख मिल रहा है? तो हम क्या अपने आप को कर रहे हैं जैसे हम एनेस्थीसिया लगा के बैठे हुए हैं. There are doctors, anesthesiologists and stuff. तो क्या है अभी कि नम होके बैठ गए हैं, नम होके बैठ गए हैं, तो is that good or bad? Question for you, is it good or bad? If we are numb, that means that absence of joy is not happiness. It is not, we have absence of pain. Basically we just think if I am not in pain I am happy. That's not happiness. तो भगवान क्या बताते हैं? भगवान बताते हैं यो वै भूमा तत् सुखम न अल्पम सुखम अस्ति. Meaning the true happiness lies in bhuma. भूमा बोलते हैं अनबाउंडेड ब्लिस. I always tell people there is no English equivalent to the word bhuma.
because we say bliss, we say joy, we say happiness, etc. But bhuma means unbounded, मतलब उसके ऊपर कोई बाइंडिंग है ही नहीं. नॉर्मली क्या होता है, हम सब में सुख आता है, फिर दुख आता है, फिर सुख आता है, फिर दुख आता है, कभी शादी होती है तो कभी मृत्यु होता है कि नहीं? We face it all the time. Some good news, then some bad news, and we alternate in it. But in Bhuma, what happens is it is unbounded. मतलब आपको आज अगर 20 units, फिर 200, फिर 2000, फिर 20 million, फिर trillion, quintillion, ultimately infinity बनता है. Meaning that there is no coming back to pain. That is why after all sages and saints, साधु संत ऋषि मुनि क्यों बोलते हैं भाई धार्मिक काम करो, क्यों बोलते हैं अच्छे काम करो, क्यों बोलते हैं? क्योंकि मुक्ति अगर पा जाओगे तो ये पछड़ा ही खत्म हो जाएगा. जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम. इसीलिए भगवान कृष्ण क्लियरली बताते हैं ये सब हमको, स्पष्ट बताते हैं कि इट इज नॉट एन इजी जर्नी फॉर अस. सो देयरफॉर इफ वी हैव फेथ, फेथ मीनिंग्स द फाउंडेशनल फंडामेंटल वैल्यू. जब तक फेथ नहीं है तब तक और कुछ पूजा करी नहीं करी क्या फर्क पड़ता है. पहले भक्ति होना चाहिए, मतलब हृदय से आना चाहिए. इट हैज टू कम फ्रॉम, इट कैन नॉट बी फोर्स्ड, इजंट इट? अब कभी कभी दूसरे बच्चे बहुत ध्यान करते हैं, हमारे अपने बच्चे ध्यान नहीं करते, क्या करोगे? वो पीछे से लाए हैं, पीछे से किसी का धन है, किसी का नहीं है. सो वी ऑल गो थ्रू दिस जर्नी इन आवर ओन लिटिल वेज. ऐसा ही हमको भी ध्यान करना है. अगेन दिस श्लोका, अनन्याश्च चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम अभियुक्ता माम योगक्षेमं वहाम्यहम्. तो हमेशा याद रखें कि भगवान सब कुछ कर रहे हैं. गॉड इज द वन डूइंग एवरीथिंग. स्टिल यू शुड प्रे टू गॉड. गॉड गिव मी हनुमान लाइक स्ट्रेंथ, मेरे को शक्ति दो. गिव मी डिवोशन लाइक शबरी एंड मीरा, मेरे को वैसी भक्ति दो. और गिव मी मुक्ति ऑल्सो, लिबरेट मी. मे सरस्वती लिबरेट अस. दैट इज व्हाट वी आर केपेबल ऑफ डूइंग इन दिस ह्यूमन बॉडी. हमारा पास बुद्धि तो बहुत है, उसी बुद्धि से हम बड़े बड़े डॉक्टर बन गए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर बना लिए हैं. कैसे? बुद्धि से ही, through your intellect and mind. So now the same mind can be channeled, because now you have all everything you want is already there. Now God says, what happens if you keep multiplying it more and more and more, and you are not coming to me, you are going backwards. आप रजस में जा रहे हो, समझ गए? रजस means worldly things only, worldly. कब तक worldly करोगे? उसके बाद हमारा पिक्चर लगेगा 1-2 जनरेशंस के लिए, फिर पिक्चर भी गायब हो जाता है. हमें थोड़ी पता है हमारे जनरेशन हमारे 5वें दादा कौन थे. हम में से कितने लोग जानते हैं? We don't know, and it doesn't matter. Even if we do know, it doesn't matter. What difference does it make? It's all history. So therefore, realize how important these moments are. अभी जिन जिन लोगों ने ये सत्संग अटेंड कर लिया, उनके पास तो ये धन चला गया. कहां चला गया? आपके अंतःकरण में, इनसाइड योर कॉन्शियसनेस. वो कब आएगा? अगर आपकी स्थिति बहुत ऊंची है तो अभी आ जाएगा, इसी समय. और अगर स्थिति थोड़ी नम्र है तो 5 साल बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद. और अगर बहुत ही ढीली है तो 2 जन्म बाद, 3 जन्म बाद, 5 जन्म बाद. वेस्ट नहीं होगा. यहां से अगर कान में घुस के यहां से निकल भी गया तो हवा तो अंदर चली ही गई. At least that breeze went in and it is vibrating now. It will never be, you will never be the same again. That is for sure. So therefore, what do sages and saints say? Realize that this is the goal of your life. Spiritualize your daily life. Karma, bhakti, dhyana, jnana. Action, devotion, meditation and scriptures. Satsanga. सत्संगा इज योर बोट टू लिबरेशन. सत्संग में बैठ गए तो नाव लेके चली जाएगी. हमें थोड़ी आता है चलाना. How many of us know how to ride a plane? We quickly buy a ticket from the airline and we sit nicely. We are served a Coke also. Then the pilot has to take you. But your responsibility is to buy the ticket, to be there, to make sure you follow the rules. तो यही है भाई. और इसमें बड़ा बड़ा ज्ञान लेकर हम क्या करेंगे? बड़े बड़े श्लोक पढ़ के क्या करेंगे? इसके साथ ही हमारा सत्संग आज समाप्त होता है. लेट अस ऑल thank Lord Krishna, Lord Rama and Shiva Vishnu temple and all the lovely devotees, all of you that are so
devoted and listening to this nectar of wisdom of the Bhagavad Gita, which is not easily available. And even if it is available, everybody has Bhagavad Gita in their home. Not everybody can explain it to this level of detail. Who will do it? Person who is genuinely given his life to God, only he can do it. Who else will do it? So, therefore, use this opportunity and liberate yourself in this birth. ये thought भी आ गया तो भगवान की कृपा बरस गई. हरि ओम तत्सत. Let us all rise. Oh, so today's Andanam is Dr. Goswami and family. He is here. So let's give him a nice round of applause. And actually he has been instrumental in this Bhagavad Gita Yagya that we have been doing for the last, how many years now, Juliji? I think 4 years now. About 4 years we have been doing it. So with God's grace, let us continue this beautiful tradition. And Hari Om Tat Sat, please rise. And may the seniors come first, and then families with children, and then anybody else for the Aarti. Thank you again for the sponsors who give us this wonderful Mahaprasadam after the Jnana Yagya. So divine blessings to all of you online and here. Let us do our Aarti and then we'll conclude. आज का सत्संग हम समाप्त करेंगे. And remember, no satsang, no physically we will not be here next Sunday, but we will be at home. Hari Om. Yeah, and also, Juliji, we had so many copies of Aarti. It was there, but can you please look for it? Because, yeah. That way everybody can sing, but that's okay if they don't Everybody have it. can sing. Maybe next time. And it will be on honor system. If you take it, put it back. Yeah. And also, I do one before Aarti. I know we're running late. I may not come every Sunday moving forward. Some Sundays I will have to miss depending on my health and my situation and responsibilities at home for my sick daughter. So please, I'll see you once in a while though. Sure. Hari Om. Hari Om Tat Sat. शुरू करें. जय भगवद गीते माँ, जय भगवद गीते. हरि कमल विहारिणि, हरि कमल विहारिणि, सुंदर सुपुनीते. ओम जय भगवद गीते. कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामासक्ति हरा. मैया कामासक्ति हरा. तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा. ओम जय भगवद गीते. निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल मलहारी. मैया निर्मल मलहारी. शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी. ओम जय भगवद गीते. राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा. मैया कारिणी मोद सदा. तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा. ओम जय भगवद गीते. निश्चल भक्ति विदारिणी, निर्मल मलहारी. मैया निर्मल मलहारी. शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी.
भयहारिणि तारिणि भवभयहारिणि तारिणि परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विदारिणी नाशिनी तम रजनी, मैया नाशिनी तम रजनी। दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की वाणी, मैया हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्रों की स्वामिनी, सकल शास्त्रों की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजय, मैया मातु कृपा कीजय। हरि पद प्रेम दान कर, हरि पद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजय। ओम जय भगवद गीते। जय भगवद गीते। मैया जय भगवद गीते। हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ ब्रह्मर्पणं ब्रह्मवि ब्रह्मज्ञो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं। ब्रह्म कर्म समाधिनः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राण अपान समायुक्ता पचामन्यं चतुर्विधम्। हरिः ओम्
तत्सत् ब्रह्मर्पणमस्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। कृपया आ जाइए, प्रसाद ले लीजिए, महागीता महारानी को हाथ लगा लीजिए। प्लीज कम फॉरवर्ड एंड गेट द